morning, kids. So, today we'll talk about our second lesson, and the points are on the basis of liability of members. So, today we'll discuss about key, we can say, on the basis of liability of member, how companies are divided or we can say categorized. Let's have a look toward it. As I told you, that on the basis of we can say members, company is divided into three broad categories. So let's have a look toward it one by one. The first one is company limited by share. ठीक है, कंपनी में ज्वाइन होने वाले मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ कैसी रहेगी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनकी जिम्मेदारियाँ कैसी होगी, उन चीज़ों को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कैसी कंपनियाँ रहेगी और उनकी लाइबिलिटीज़ कैसी होगी, है ना। तो ये देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है मेरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिमिटेड होते हैं, उस कंपनी की लाइबिलिटी भी कैसी रहेगी, लिमिटेड। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर according to section 2 and subclause 22. According to section 2 and subclause 22, the company is having share capital. The company is, we can say, having share capital and limited liability for each member of the organization. Okay, a company in which share capital of each member, and those who are joining in that firm, and liability of each member is, we can say, limited. So that type of firm is known as company limited by shares. Means in that company, share capital is also limited and liability of the same, and our members who are joining in the particular company, it's also same. It's also limited. एक ऐसी कंपनी बच्चों कि जिसके अंदर, जिस कंपनी का नाम होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो शेयर्स के हिसाब से लिमिटेड रहेगी। तो एक सेक्शन आता है हमारा, सेक्शन 2 सब क्लॉज 22। उस सेक्शन के अंडर में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होगी या जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी या वी कैन से जो कंपनीज फॉर्म होंगी, उन कंपनीज को बोला जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नाउ ऐसी कंपनी जिनके पास में शेयर कैपिटल और मेंबर्स की लाइबिलिटी ईच मेंबर की लिमिटेड होगी, उसी कंपनी को हम बोल देंगे कंपनी, वी कैन से लिमिटेड बाय शेयर। आगे देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस okay, now the company is having limited amount of share capital and limited liability for members, yeah, we can say for each members. Now during existence of company or in the event of winding up, or we can say in the event of winding up, एक ऐसी कंपनी जो एग्जिस्ट हो रही है या एग्जिस्टेंस में है या जो बहुत जल्द वी कैन से वाइंड अप होने वाली है, खत्म होने वाली है, अ मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन। सो अ मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन, उस मेंबर को हम लोग क्या बुलाते हैं, कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट्स, टू पे the, we can say, unpaid remaining amount to unpaid remaining amount on the shares purchased by him, on the shares purchased by, let it be him or her. Okay guys, as I told you, the meaning of company limited by shares means they are having, okay,
they are having limited amount of share capital, and simultaneously on the other hand they are having limited liability. And as for each member, okay, and as they are having limited amount of share capital and limited liability for each member, so they are having a right, and that during existence of company, or maybe in the winding of the company, a member can be called upon to pay the unpaid remaining amount. The person is having a right to ask about the unpaid remaining amount on the shares purchased by him or her. For example, a person is purchasing 1,000 shares of a company, and during lifetime of company is paying interest on all these shares. So during existence of company, yeah, we can say at the time of winding up of company, they are means the shareholders of that particular company, they are having a right to ask about the, we can say, unpaid remaining amount. Means whatever amount is unpaid till now, they are having a right to ask about same. अगली हमारी कंपनी बन जाती है बच्चों, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 के अंडर में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है या फॉर्म होती है, उन कंपनीज को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक ऐसी कंपनी होती है जिनका शेयर कैपिटल लिमिटेड होता है, प्लस उनकी लाइबिलिटीज भी लिमिटेड होती है एक हर एक मेंबर्स के लिए। आइए आगे देखते हैं। इन मेंबर्स को एक हक होता है या एक राइट होता है कि कंपनी जब भी एग्जिस्ट हो रही, मतलब एग्जिस्टेंस में है, चल रही है तभी, और जब कंपनी वाइंड अप होने वाली है तभी, या तो चल रही है तभी भी मांग सकते हैं या वाइंड अप की प्रोसीजर में तभी भी मांग सकते हैं, है ना। दे आर हैविंग अ राइट टू आस्क अबाउट अनपेड रिमेनिंग अमाउंट, कि जो भी बैलेंस्ड अमाउंट बची हुई है वो जो उन्होंने खरीदी थी, है ना, जितने भी शेयर्स उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1,000 शेयर्स खरीदे थे कंपनी के, अब तक कंपनी ने जितना भी पे कर चुकी है, और जो बैलेंस्ड अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 800 पे कर चुकी है, 200 अभी भी पे करना बाकी है, तो ये लोगों को राइट है कि वो पूछ सकते हैं कि जितने भी शेयर्स हमने परचेज किए थे, फॉर एग्जाम्पल 1,000, उनमें से अब तक आप 800 पे कर चुके हो, देन व्हाट अबाउट बैलेंस 200, ये लोगों को उसको पूछने का भी राइट होता है। और वी कैन से द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, वी कैन से, जैसे कि मैंने बात किया कि ऐसी कंपनी जिनके कैपिटल भी लिमिटेड रहेगा और जिनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी, तो इट मे बी प्राइवेट कंपनी और वी कैन से पब्लिक कंपनी। ओके, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। आइए देखते हैं इसी का सेकेंड वाला पार्ट क्या होना चाहिए मेरा फिर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स में, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड, वी कैन से सेकेंड पार्ट ऑफ इट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। चलिए अब देखते हैं कि वी कैन से कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर में क्या आना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 and subclause 21, the same company is, we can say, directed or guided under section 2 subclause 21। इस एक्ट के, आई एम सॉरी, इस सेक्शन के अंडर में ये कंपनी फॉर्म होती है या इनकॉर्पोरेट होती है। आइए देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी may or may not have a share capital. These type of companies may or may not have a share capital, means some companies are having share capital and some companies are not having share capital। इस टाइप की जो कंपनीज होती है बच्चों, कुछ कंपनीज में शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो कुछ में नहीं किया जाता है। आगे, ईच मेंबर प्रॉमिस टू पे fixed sum of money, and in it each member promises to pay fixed amount। Okay guys, in it each member, we can say, promise to pay fixed amount of money in specified
in specified memorandum in the event of liquidation of company, liquidation of कंपनी. ओके, इस टाइप की जो कंपनी होती है, मे बी दे आर हैविंग अ शेयर कैपिटल और मे नॉट. मतलब sometimes the companies are having share capital and sometimes they are not having, we can say, share capital. Now in the same type of company, each member promises to pay fixed amount. इस कंपनी के अंदर हर एक मेंबर प्रॉमिस करता है. किस चीज़ की प्रॉमिस करता है? कि वो एक, वी कैन से, स्पेसिफाइड अमाउंट या वी कैन से सम ऑफ अमाउंट, लिक्विडेशन, कंपनी का लिक्विडेशन से पहले या लिक्विडेशन जब होगा तब वो पर्टिकुलर पैसा दे देगा या लगा देगा. दिस इज, वी कैन से, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. मीन्स इट्स अ गारंटी बाय ईच मेंबर ऑफ द कंपनी, है ना, हु आर प्रोमिसेस टू पे फिक्स्ड सम ऑफ मनी इन स्पेसिफाइड पीरियड. वो लोग एक गारंटी देते हैं या एक वादा करते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड में हम लोग पर्टिकुलर पैसा पे कर देंगे लिक्विडेशन से पहले. ओके, फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी. व्हाई दे आर पेइंग? फॉर, वी कैन से, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी, है ना. व्हाई दे आर प्रॉमिसिंग टू पे फिक्स्ड सम ऑफ मनी? क्यों ये एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देने की प्रॉमिस करते हैं? टू रीपे डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी, कंपनी के लोन्स एंड लाइबिलिटीज को वी कैन से क्लियर करने के लिए. नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. नॉन प्रॉफिट मेकिंग मीन्स द एम, द मेन एम ऑफ दीज टाइप ऑफ कंपनीज इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इन कंपनीज का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है. दे फॉर्म द पर्पज. नाउ द पर्पज कि वाई दे आर, वी कैन से, द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ कंपनीज इज, वी कैन से, ये कंपनीज क्यों फॉर्म होती है? जब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर ये कंपनी फॉर्म क्यों की जाती है? आइए देखते हैं. वी कैन से प्रमोशन ऑफ आर्ट, फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, culture, या वी कैन से चैरिटी, या अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, स्पोर्ट्स. चलिए, इस टाइप की जो कंपनी होगी उनमें शेयर कैपिटल होगा या नहीं होगा, डिपेंड्स. इस कंपनी के सारे मेंबर्स प्रॉमिस करेंगे कि एक लमसम अमाउंट वो लिक्विडेशन, कंपनी बंद होने से पहले पे कर देंगे. क्यों पे कर देंगे? जितने भी हमारे थर्ड पार्टीज है कंपनी के, उनके डेब्ट्स या उनके लोन्स या उनकी लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने के लिए. प्लस इस कंपनी का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं होता है. फिर इसका मकसद क्या होता है? तो इसका द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ कंपनीज, ऐसी कंपनीज का फॉर्मेट होने का मेन मकसद ये होता है बच्चों कि वो लोग किसी चीज़ का प्रमोशन करना चाहते हैं, जैसे कि आर्ट्स हो, साइंस हो, कुछ कल्चरल इवेंट्स हो, कुछ चैरिटी हो फॉर नीडी पर्सनस, या वी कैन से स्पोर्ट्स हो. आइए देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कि क्या बनना चाहिए मेरा थर्ड वाला पॉइंट. So let's have a look toward it. The third one is, we can say, unlimited liability company. Unlimited liability. Now here the liability of members is unlimited according to section 2 and subclause 92. Let's have a look. Okay, as I told you, the liability of members are unlimited liability. They are having unlimited liability. Next one is, we can say, members are fully liable to cover the debts of company. Yes, as they are having unlimited liability, so they have to cover, yeah, we can say members are fully liable. We can say members of these type of companies and are fully liable to cover debts. As I told you guys, these type of companies
members are having unlimited liability, and as they are having unlimited liability, by hook or by crook, only members are fully liable to pay cover debts, means to pay the to clear the debts, yeah, we can say to clear the liabilities of third party owners, yeah, third parties. And the last point of it is the company may be the examples of, we can say, companies enlisted in these type of कंपनी, ऐसी कंपनीज जिनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी, उनके नाम देख लेते हैं. इट मे बी अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और वन पर्सन प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी, है ना. अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज कौन सी हो सकती है? प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, या जो हमने वन पर्सन वाली देखी थी वो भी हो सकती है. आइए देखते हैं मेरा अगला पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें. Now move on to the next point, guys, which is yours, on the basis of control. Okay, company on the basis of control. आइए देखते हैं कंट्रोल के बेसिस पे कंपनीज कैसी होती है. Now two types of it, दो टाइप है इसमें बच्चों. फर्स्ट वन इज होल्डिंग कंपनी and the second one is subsidiary companies. Okay, let's have a look toward the another type of companies which is on the basis of control. कंट्रोल के हिसाब से कंपनीज को कैसे डिवाइड किया गया है? तो on the basis of control, companies are divided into two broad categories. First one is holding company and another one is subsidiary company. So first we'll talk about, we can say, holding company. So let's have a look toward it. According to section 2 and sub clause 46, इस कंपनी के लिए सेक्शन कौन सा है बच्चों? 2 और 46. आइए देखते हैं इसमें अब है क्या. अ कंपनी विच होल्ड्स, अ कंपनी विच वी कैन से होल्ड्स more than one half of the total share capital Okay, now holding company is a company and which is holding more than half of the total share capital. For example, the share capital is 1 lakh, so company is holding more than 50,000 rupees with it. 1 लाख अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कंपनी 50,000 से ज़्यादा पैसा होल्ड करके जब रखेगी या अपने पास में जब रखेगी, दिस इज नोन एज होल्डिंग कंपनी. In short, holding, according to section 2 subclause 46, holding company is a company which is holding more than half of its total share capital. टोटल शेयर कैपिटल का हाफ पोर्शन जो होल्ड करके रखती है उसे हम बोल देंगे होल्डिंग कंपनी. नाउ वी कैन से हाफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी. होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो किसी कोई और कंपनी का आधे से ज़्यादा शेयर होल्ड करके रखती है या संभाल के रखती है. ऐसी कंपनी को बोला जाता है बच्चों होल्डिंग कंपनी. और जिन कंपनीज के वो शेयर होल्ड करके रखती है वो कंपनीज बनती है मेरी सब्सिडियरी, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, अब होल्डिंग कंपनी क्या करती है? अनदर कंपनीज के आधे से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करके रखती है या उनका शेयर कैपिटल होल्ड करके रखती है. अब एंड दे आर हैविंग, and as holding company is holding, we can say, more than 50% of share capital, so they are having powers to appoint or to remove, to appoint, or we can say to remove all or majority of directors. Okay, as I told you, holding company is a company who is holding shares of another company. एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के 50% से भी ज़्यादा कैपिटल को होल्ड करके रखती है, उस कंपनी को हम लोग बोल देंगे होल्डिंग कंपनी. और जब होल्डिंग कंपनी वी कैन से आधे से ज़्यादा कैपिटल होल्ड करके रख सकती है, तो सेम वे
holding companies are having powers to appoint or to remove, means to join or to remove all or majority of directors. फिर majority किस, सॉरी, होल्डिंग कंपनी के पास में क्या क्या राइट्स होंगे कि किसी भी डायरेक्टर को वो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है. एंड लेट्स हैव अ लुक टूवर्ड, वी कैन से सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है बच्चों जिसका कैपिटल कोई और कंपनी होल्ड कर रही होती है. होल्डिंग कंपनी जिसका कैपिटल शेयर कर, आई मीन होल्ड कर रही होती है, वो होती है मेरी सब्सिडियरी कंपनी. और सब्सिडियरी कंपनी का ही कैपिटल होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है. तो ये जो कंपनी होती है मेरी, ये जस्ट वी कैन से अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट टू होल्डिंग कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी मेरी होल्डिंग के बिल्कुल अपोज होती है. और होल्डिंग कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होल्ड करके रखती है वो होती है मेरी सब्सिडियरी कंपनी. इसलिए इनके पास में कोई भी पावर्स नहीं होते हैं, है ना, टू अपॉइंट और टू रिमूव द डायरेक्टर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.